Now the second question can be related to the pollution. Pollution भी हमारा बहुत कॉमन बच्चे कंसर्न है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है सिटीज़ में, राइट? तो सिटी के लिए, इनहैबिटेंट्स के लिए, स्पेशली इन द केस ऑफ दिल्ली विच हैज़ बीन रेटेड एज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. सो the article on pollution in my city, or the harmful effects of pollution in any form related to pollution article can come for your school magazine or for the newspaper. You can just write down, because like the stress in for the stress during the examinations, pollution is also a very common topic. So for that, what you need to know, first of all, what you will write about, what is your main topic, pollution. तो आपने सबसे पहले ऑर्गेनाइज कैसे करना है, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे व्हाट इज़ पोल्यूशन. व्हाट इज़ पोल्यूशन लिखेंगे कि पोल्यूशन क्या है, एंड यू विल राइट डाउन अबाउट द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन कैसे फैलती है एंड कितने टाइप्स की पोल्यूशन होती है. एंड इफ़ यू रिमेंबर, यू हैव वन लेसन इन योर लिटरेचर, हेल्थ इज़ वेल्थ. In that you have water pollution and land pollution, so you can take few lines from that lesson also, but as it is a very common topic, so you can write it yourself also. तो आप लिखिए पहले that what is pollution. Pollution के बारे definition लिखिए. Then you write down that there are so many types of pollution. It can be of many types: land pollution, air pollution, noise pollution. एक पैराग्राफ आप बड़ा सा पोल्यूशन के बारे में लिख दीजिए, काइंड्स लिख दीजिए उनकी. सेकेंड में आप आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन पे. देन इन द सेकेंड पैराग्राफ यू विल राइट दैट कॉजेज़ क्या हैं पोल्यूशन के, कि पोल्यूशन कैसे फैल रही है. लैंड पोल्यूशन कैसे फैल रही है, दैट वी आर throwing the garbage anywhere. We just don't see that where we are throwing it. We are not we are not thinking about our city to keep it clean. We just make sure that our houses are clean and we don't bother about the cities. If we are going, we go out, and if we are eating something, we'll just throw the peel there or throw the wrappers there only, and we'll just not bother to see the dustbin and throw it in that. तो ये जो चीज़ें होती हैं नेग्लिजेंस जो हम लोग करते हैं, कि वाइल वी आर आउटसाइड, सो नोबडी इज़ गोइंग टू लुक एट अस एंड नोबडी इज़ गोइंग टू ask us that why you have thrown this thing here. But as a citizens of India, we should take the responsibility of this, that we don't throw, we don't litter our country and our surroundings. It is our moral duty, and make sure that we tell our parents also, and if anybody else is doing this thing, so we can just politely tell them that please throw this thing in the dustbin. Or either, if you don't look at if you don't find any dustbin, so you can put it back in your bags and throw it later whenever you find it. Then the uses of all the chemical waste, factories waste, that is just put into the rivers and all the water bodies, that is making worst the condition of the water. That is why the water is getting contaminated. आजकल जो है पानी ही ज़्यादा कंटेमिनेट हो रहा है. पानी को हम, वाटर को हम एलेक्ज़र कहते थे, मीन्स ये एक तरह से नेक्टर होता है. और आज जो हमारा वाटर है वो क्या बन गया है हमारे लिए, पॉइज़न बन चुका है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत सारी हो जाती हैं. Then you can tell about the noise pollution also, that people use the loudspeakers whenever they have some cultural activity or some function at their home or wedding. They don't bother that it will disturb the nearby inhabitants of the nearby inhabitants. So this can cause the noise pollution. So like this you can write about the causes, and then you will continue with writing the bad effects of the pollution. और आपने ये भी बताना है कि किस लेवल तक पोल्यूशन आपकी सिटी में है. थोड़ा सा आपको एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लेना पड़ेगा. यू विल हैव टू टेक अ डेटा फ्रॉम द इंटरनेट दैट आपके सिटी का जो लेवल है पोल्यूशन का वो कितना है, और किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट जो आपका पोल्यूशन है सिटी में कहाँ तक जा रहा है. ठीक है. और उसके बाद आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने
लिखने हैं कि हाउ यू कैन फाइट द पोल्यूशन, आप क्या रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं कि आपकी सिटी से जो है पोल्यूशन दूर हो जाए। तो आपको इस चीज़ों का ऐसे आपको सॉर्ट आउट करना है और आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने आर्टिकल को अगर पोल्यूशन पे आ जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं बच्चे ये, पोल्यूशन तो वैसे ही है। देन article can come on that vegetarian and non-vegetarian diet also, that also we have done in that your lesson health is wealth. So you can prepare an article on that also, vegetarian and non-vegetarian diet, or is the vegetarian diet complete, or do you need to take the non-vegetarian diet? Is it compulsory that you have to take the non-vegetarian diet also? So you have to write an article, prepare a paragraph or an article on that also. It will be good for you because it can improve your writing skill. So I'm just discussing about all this. Then this is also a very common topic. Drive safe, avoid accidents. Mostly road accidents are caused due to the negligence, reckless speed and human error. ठीक है ना? आजकल क्यों हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा? नेग्लिजेंट हैं हम लोग, हेलमेट्स नहीं पहनते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और हमारी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, रैश ड्राइविंग करते हैं, ह्यूमन एरर हो जाती है. So one person, they have written the name that Shankar feels strongly about the unfortunate loss of lives that can be easily saved by taking various precautions. So here they are talking, one person who is feeling strongly about that these accidents can be avoided, and if we take some safety measures. So we have to write an article in about not more than 150 words for your school magazine, or like the Students World, the name of your magazine is Students World, and on that topic you can write drive safe, avoid accidents, like that. तो आप इस टॉपिक पे भी अपना थोड़ा सा माइंड में प्रिपेयर करके रख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अभी आए ना आए, बट ये है कि मैं आपको एक डिस्कशन कर रही हूँ आपके साथ कि आप के लिए अच्छा रहेगा ये, अगर क्योंकि यू आर ऑन इन 8th क्लास एंड नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू बी इन द secondary class, 9th class. So for that you should get prepared, because in 9th class grammar is very less. Most of all you have the creative writing and the writing skills. ग्रामर आपकी 8th में ही आके ख़त्म हो जाती है. आपको 9, 10th, 11th, 12th में 9, 10th में थोड़ी बहुत ग्रामर रह जाती है, एडिटिंग रह जाती है, या फिर ओमिशन रह जाता है. मैक्सिमम आपकी 8th तक ही होती है ग्रामर. इसके बाद राइटिंग स्किल्स पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है. तो इसलिए आप अगर ये छोटे छोटे मेन टॉपिक्स हैं, बड़े कॉमन टॉपिक्स हैं, ड्राइव सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स, पोल्यूशन हो गया, या हेल्दी डाइट पे आ गया, वेजिटेरियन डाइट पे आ गया, तो इन सब चीज़ों पे आप आराम से जॉट आउट कर सकते हैं पॉइंट्स. मीन्स इसमें आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं. तो इसमें आप लिख सकते हैं हाईलाइटिंग दी इंक्रीज़ इन द रोड एक्सीडेंट्स एंड लॉस ऑफ लाइफ. सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका मेन यही है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. तो आपने स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, आपने हाईलाइट करना है कि आजकल रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, देयर इज़ एन इंक्रीज़ एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स ऑल्सो. फर्स्ट पैराग्राफ आपने ऐसे ही लिखना है. फिर आपने सेकंड में लिखना है कॉजेज़ या फिर रीजंस के एक्सीडेंट्स के, क्या कॉजेज़ हैं और क्या रीजंस हो सकते हैं एक्सीडेंट्स के, क्यों होते हैं आजकल. ठीक है, तो उसके बाद आप सजेशंस दे सकते हैं या प्रिकॉशनरी स्टेप्स आपको क्या क्या लेने चाहिए फॉर द पैसेंजर्स एंड फॉर द ड्राइवर्स ऑल्सो. हाउ यू कैन अवॉइड दीज accidents, road accidents, because if we follow all the traffic rules and rules and regulations, so I think that lot of accidents can be avoided. This only happens due to the human error and negligence. इतना तो आप भी मानते होंगे. बहुत कम लोग हैं हम में से जो कि हेलमेट्स पहनते हैं. हम लोग सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को देख के हेलमेट सिर पे पहनते हैं, फिर हम आगे निकलते हैं तो फिर बाजू पे निकाल के रख लेते हैं हेलमेट को. क्यों? किसकी सेफ्टी के लिए है बच्चे? ये मैं आप सब के लिए बोल रही हूँ. किसकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं? उनको तो इससे कुछ नहीं मिलना. कल अगर एक्सीडेंट आपका होता है तो सिर में चोट किसके लगेगी? और सबसे ज़्यादा फेटल चोटें होती हैं जो वो सिर में ही लगती हैं.
इसीलिए बोला जाता है कि हेलमेट्स पहनिए, क्योंकि हेलमेट्स जो हैं आपके हेड को, आपके ब्रेन को सेफ रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप यू ऑलवेज वियर द ट्रैफिक दैट हेलमेट, एंड वाइल ड्राइविंग अ कार यू शुड वियर द सीट बेल्ट। क्यों? क्योंकि वो आपको पकड़ के रखती है। अगर सपोज़ कोई एक्सीडेंट होता है, आपको इमीडिएटली ब्रेक लगाने पड़े, तो आप जाके आगे मिरर के फ्रंट कार के जो मिरर है उससे आप क्रैश नहीं करेंगे। अगर आपने सीट बेल्ट लगाई होगी तो आप सीट के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे। ये चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। आखिर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी अच्छाई के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए ही बनाए हैं गवर्नमेंट ने। वी डोंट फॉलो देम, वी थिंक दैट अगर हमारा जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब हो जाएगा, या इट गोज़ अगेंस्ट आवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे रिलीजन में जी सिर पे नहीं है पहनना, या हमारा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। तो बच्चे, सबसे पहले क्या है, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी तो और फिर किसके लिए आप ये सब करेंगे? तो ये सब चीज़ें हमें माननी चाहिए, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए बनाए जाते हैं वो हमारी बेटरमेंट के लिए बनाए जाते हैं। घर में भी आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं ना, बताते हैं कि नहीं ये नहीं करो या ऐसा करो, डूज़ एंड डोंट्स। दे टेल यू डोंट गो देयर, या डोंट ईट दिस, डोंट डू दैट। तो इसीलिए बताते हैं। आपको कई बार अपने पेरेंट्स पे भी गुस्सा आता होगा कि क्या बार बार बोलते रहते हैं कि ये नहीं करो, वो करो, डूज़ एंड डोंट्स बताते रहते हैं। इसीलिए बताते हैं बच्चे, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे होते हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वो हमारी बेटरमेंट के लिए बनाती है। हम अगर हेलमेट पहनेंगे तो हमारी ही प्रोटेक्शन होगी ना बच्चे। फिर क्या है, इतना स्ट्रिक्टनेस क्यों करनी पड़ रही है? अब जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कोरोना। नाउ डेज कितना गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वियर मास्क, ओनली गो आउट व्हेन इट इज़ वेरी नेसेसरी, बट डू द पीपल फॉलो? नो, they don't bother about that. They are just going outside, they are roaming, they are partying, they are just going on traveling, they are enjoying holidays. Okay, whatever it is, if you are going outside, at least you should follow the rules. Wear the mask, maintain the distance, and keep your personal hygiene, and then you will abuse your government कि वो कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट कर नहीं रही है। तो बच्चे, अगर आपको बोला जाता है कि ये रूल्स करने हैं, आपको मास्क पहनना है, तो क्यों नहीं पहनते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं हो रही है? तो इन सब चीज़ों का तो बच्चे ब्लेम हम ही पे आएगा ना, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट आपको समझा सकती है, जैसे कि हम आपको समझा सकते हैं। टीचर्स का काम होता है आपको समझाना, आपको गाइड करना। मानना या नहीं मानना या उसको प्रैक्टिस में लाना किसका काम है? स्टूडेंट्स का काम है। ऐसे ही गवर्नमेंट का काम है समझाना। आगे अगर पब्लिक नहीं मानती है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर्कमस्टांसेस का? हम लोग खुद ही होंगे। तो इसीलिए आप ये एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ आइडियल सिटीज़न कि they should follow the rules and regulations of our country, and it is made for the betterment of ourselves. So we should keep in mind, we should not criticize our government for imposing all the heavy fines and penalties on that, because they do this only in compulsion. So like this, you can just organize your article. I hope it is beneficial for you, and best of luck for your exams.